Honorable Health Minister, Mansukh Mandavia, आपका हार्दिक स्वागत है. Ladies and gentlemen, welcome. In fact, double welcome for coming out in these times for the 7th edition of the India Today Safai Giri Awards, which since last year have been converted into the Health Giri Summit and Awards. Since the pandemic is still with us, and this year has been traumatic too, we continue as the Health Giri Awards. It is an honor and privilege to have hosted these awards since 2014, when Prime Minister Narendra Modi nominated the India Today Group and me as Swachh Bharat ambassadors. Just yesterday, the Prime Minister launched the Swachh Bharat Mission Urban, SBMU 2.0, an Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation, Amrut 2.0. CBMU 2.0 aims to make our cities garbage-free, improve sewage and septic management, make our cities water-safe, and ensure no sewage drains into our rivers. These are very laudable and much-needed goals. Prime Minister Modi said yesterday, and I quote, "Cleanliness is a lifestyle. Cleanliness is a life mantra." I believe we should all act on this mantra for the well-being of our country. As we continue this cleanliness mission, we can't forget the fact that the specter of the COVID-19 pandemic continues to stalk us. The pandemic has caused collective deaths and misery globally, disrupting lives and livelihoods unlike any other time in recent history. It has killed over 4.7 million people worldwide since last year. Economies have been ravaged. The living has had to cope with the greater economic insecurity, anxiety, and disruption in every aspect of their life. For many, challenges to mental and physical health remain. So far, India has recorded more than 33 million confirmed cases of COVID-19 and 4,48,605 deaths. We ranked second to America in the number of cases in a country and third in the total number of deaths. We saw a devastating second wave of the COVID-19 pandemic between April and May this year, recording over 400,000 cases a day. Half of all of India's COVID-19 deaths occurred in those 2 months alone. And I'm sure every one of us present here was touched by this health emergency in some way or the other. Our fragile healthcare system was rapidly overwhelmed by the unprecedented waves of the infected patients. There were not adequate ambulances to transport the sick to hospitals. Oxygen and hospital beds were in short supply. And there was a shortage of medical staff to tend to patients. Crematoriums were inundated, and in many cases where entire families tested positive, nobody was there to perform the last rites of the dead. It was a war, and it needed an exceptional group of warriors to fight it. Across the country, thousands of remarkable men and women and organizations, both in public and in the government, were our corona warriors who helped their fellow citizens. They offered health care and services, ran ambulances, delivered medical oxygen to the needy, operated child support programs, performed the last rites of the deceased, and supported the state in coping with the crisis. I am delighted that we are awarding the selfless work of this legion of unsung heroes. However, there's a light after the darkness. India has reported less than 50,000 daily cases for 92 consecutive days. Now with only 26,727 new cases added yesterday. Moreover, the weekly test positivity rate, which WHO recommends being less than 5%,
has been less than 3% in India for 94 days. And Delhi has seen less than 100 positive cases for 3 months now. Consequently, hospital beds for COVID have very low occupancy in major cities. In Kerala, a state with the highest number of active cases, only 4% of all those admitted in hospital had critical symptoms. The second wave finally seems to be behind us, but we cannot be complacent. We can be complacent only at our own peril. We need to keep our guard up by continuing to maintain social distancing norms and masking up. We also have much to celebrate. India's vaccination program has been one of the most significant global success stories of the battle against the pandemic. After a slow start, we have gone on to launch one of the world's most extensive vaccination drives. Since March 1st, we have given over 900 million doses of COVID vaccines. This is more than the population of Europe. In just one day, on September 17th, we vaccinated over 25 million people across the country, a world record. Besides being the largest manufacturer of vaccines globally, India has developed the world's first DNA vaccine, which can be administered to all people above the age of 12. The Prime Minister recently informed the UN General Assembly of this. Honorable Minister Mansukh Mandavia told us recently how India aims to resume the export of COVID-19 vaccines from this month, thereby fulfilling our global commitments. Honorable Minister, we have chosen the winners of the Healthgiri Awards through online public nominations. 5 or 6 names were shortlisted for each of the 18 categories. The jury selected the winners and verified them by an independent research agency, MDRA. A select jury comprising of Mr. Manish Sabharwal, Chairman, Team Lease Services Limited, Dr. Srinath Reddy, President, Public Health Foundation of India, Dr. Naresh Trayan, Chairman and Managing Director of Medanta, Dr. Swati Piramal, Vice Chairperson, Piramal Group, and myself. I want to thank our jury for having taken the time out to do this. I just want to mention that we decided not to consider those awarded the previous year, although they continue to do exemplary work. I believe that the winners today and those who participated in the Healthgiri Awards are the true heroes and the real champions of New India. It is our privilege to recognize their outstanding work. I'd now like to introduce Shri Mansukh Mandavia, the Honorable Minister of Health and Family Welfare, Chemicals and Fertilizers. Shri Mandavia is a member of the Rajya Sabha from Gujarat and one of our youngest cabinet ministers. He was sworn in as a Minister of State for Road, Transport and Highways, Shipping and Chemicals and Fertilizers in 2016. In 2019, he was given independent charge of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. He represented India in the World Economic Forum at Davos, Switzerland last January. An ardent propagator of feminine hygiene and women's rights. He was awarded Men for Menstruation by UNICEF on the Menstrual Hygiene Day for his initiative of Savida Sanitary Napkin. In July this year, he was appointed Minister of Health and Family Welfare, where, among other tasks, he has to lead the government's fight against the pandemic. Sri Mandavia is a passionate cyclist and one of our few politicians to ride a bicycle into Parliament. Asked why he does it, he said, "It's a passion, not fashion, for me." I know he would bring the same passion into his new responsibilities. With his track record of hard work and commitment to serve the people, I believe the health of this country is in good hands. I heartily welcome the Honourable Minister and request him to deliver our keynote address. Thank you. Mansukh Bhai.
हेल्थगिरी अवार्ड के आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित इंडिया टुडे परिवार के मोभी अरुण पुरी जी, सभी अवार्ड विनर भाइयों एवं बहनों, आज का कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे जब इनविटेशन देने के लिए आया था तब मैंने कहा था कार्यक्रम में मैं आऊंगा। बाद में मेरा और कार्यक्रम बन गया, लेकिन ये कार्यक्रम में आना था ऐसे मेरे मन में था। और जो व्यक्ति, मैं या आप में से कोई भी, आपके मन में जो चीज़ बैठ जाती है कि मुझे करना चाहिए, वो हो ही जाता है। वैसे मैं आप सब लोगों के बीच में आ गया। ये हेल्थगिरी अवार्ड इस लोगों को देना है। और इस दिन इस कार्यक्रम आयोजित किया गया है जो महात्मा गांधी जी का ये जन्म जयंती है। महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के साथ जोड़ के इस अवार्ड को देना, ये आप में आप ये अवार्ड का महत्व बढ़ जाता है। महात्मा गांधी एक व्यक्ति से उभर के एक विचार थे, और ये विचार का भी एक युग था जिसको गांधी युग कहा जाता है। ए गांधी ने 1942 में आगा खां पैलेस में जब वो बंद थे, उस वक्त उन्होंने एक बुक लिखी थी। बुक का नाम था की टू हेल्थ। और एक की टू हेल्थ बुक से हमें प्रेरणा मिलती है और ये वास्तविकता की ओर हमें निर्देश करता है। हमारा शरीर किससे बना हुआ है? पंच महाभूत से बना हुआ है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, ये सभी के बीच में तालमेल रखना चाहिए। ये तालमेल नहीं रहेगा तो आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी। ऐसी बात महात्मा गांधी जी ने इस बुक में कही। और दूसरी बात ये भी कही कि कौन किसको आप संपत्ति मानते हो? क्या आप आपकी प्रॉपर्टी को संपत्ति मानते हैं? क्या आप गोल्ड को संपत्ति मानते हैं? डायमंड को संपत्ति मानते हैं? गांधी जी ने कहा कि सही संपत्ति आपकी हेल्थ है। और ये बात महात्मा गांधी जी ने ये समय में की, हमने कोरोना क्राइसिस में देखा। नॉट ओनली फॉर इंडिया बट एंटायर वर्ल्ड। सभी डॉक्टर ने यही कही कि इम्यूनिटी अच्छी हो तो कोरोना से आपको दिक्कत नहीं हो। इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए आपको, मैंने कहा कि शरीर में पंच महाभूत का तालमेल रखना चाहिए। और तालमेल रखने के लिए हमें हमारी हेल्थ को कैसे देखना है, ये उसमें से हमें प्रेरणा मिलती है। कोविड क्राइसिस सारी दुनिया में आई, हमने देखा। उसमें से कई पहलू, हिंदुस्तान की कई ताकत, यहाँ अरुण पुरी जी जब बता रहे थे इंडिया ने ये किया, मुझे गौरव महसूस होता था। इंडिया में ब्रेन पावर, मैन पावर, क्षमता की कभी कमी नहीं थी। एक क्षमता पर भरोसा करने वाला व्यक्ति चाहिए था। जब लॉकडाउन हुआ और उस वक्त मोदी जी ने लॉकडाउन की यहाँ घोषणा की, दुनिया में भी लॉकडाउन लगा था। और जिसको हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, वहां भी क्या हुआ? एजिटेशन हुआ। लॉकडाउन के खिलाफ लोग निकले। वहां ये सब व्यवस्थाएं थी। इंडिया में तो ह्यूज डाइवर्सिटी है, यहाँ गरीबी भी है, अमीरी भी है, मिडिल क्लास भी है, सब स्थिति है। 130 करोड़ की जनसंख्या है। और मोदी जी ने लॉकडाउन के लिए कहा, सारे देश में लॉकडाउन लगा। 1.5 महीने तक लॉकडाउन रहा। देखो हिंदुस्तान की ताकत। सरकार से जो होना करना था सरकार ने किया, स्वैच्छिक संस्थाओं ने जो करना था उन्होंने किया, और जिससे जो हो सके हो किया। लेकिन किसी ने अपने पड़ोसी में किसी को भूखे सोना नहीं दिया। और कोविड क्राइसिस के सामने हम अच्छी तरह से लड़ सके, सभी की संभाल की। क्योंकि हमारा कल्चर है ना, हमें प्रेरणा कहां से मिलती है? हमारी फिलोसॉफी से, वसुधैव कुटुंबकम। हमारा कल्चर है वसुधैव कुटुंबकम। और हमारा कल्चर है, हम हमारे द्वार पर लिखते हैं लाभ शुभ।
मेरा लाभ हो, मेरा कल्याण हो, लेकिन दूसरे का भी कल्याण होना चाहिए, शुभ दूसरे का भी शुभ हो। ये दूसरे का शुभ की हमारा जो संस्कृति थी ना, उन्होंने हमें कोविड क्राइसिस में लड़ने में मदद किया है, हिंदुस्तान की ताकत। और दूसरा, जब फर्स्ट वेव चल रहा था, सारी दुनिया में मेडिसिन की क्राइसिस थी। देखो हिंदुस्तान में उस वक्त मोदी जी ने मुझे कहा था, मैं फार्मा मिनिस्ट्री देख रहा था, कहा कि आपके देश की स्थिति क्या है, कैपेसिटी क्या है, क्या हम दुनिया को मदद कर सकते हैं। मैंने सारा असेसमेंट किया और बताया कि जी साहब, देश की आवश्यकता को भी हम पूरा कर सकते हैं और दुनिया को मदद भी कर सकते हैं। मोदी जी ने दुनिया को मदद किया। 123 कंट्री में हमने मेडिसिन पहुंचाई। 64 कंट्री से मोदी जी पर मैसेज आया, किसी ने थैंक यू का मैसेज दिया, किसी ने मोदी जी को कॉल करके थैंक यू कहा, किसी ने ट्वीट करके थैंक यू कहा। हिंदुस्तान ने दुनिया को अवसर आया, समय आया तो मदद किया। कोविड क्राइसिस चल रही थी, देखो मोदी जी ने देश के साइंटिस्ट पर भरोसा किया। और जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा इंडिया में, उस वक्त गरीब कल्याण पैकेज के साथ 900 करोड़ रुपीस मोदी जी ने व्यवस्था की। देश में वैक्सीन का रिसर्च हो, एक विजन था, विजन के साथ काम शुरू किया, क्योंकि इतना बड़ा देश, उसको वैक्सीन चाहिए और वैक्सीन इंडिया नहीं बना पाएंगे तो क्या होगा। इतिहास ये रहा कि वैक्सीन दुनिया में बनती थी, रिसर्च होता था, दुनिया में लग जाती थी और इंडिया में आने मिनिमम 5 साल से मैक्सिमम 10 साल लगा था। तब इंडिया में दुनिया में रिसर्च हुई, वैक्सीन आती थी। ये रिसर्च के लिए मोदी जी ने सारी व्यवस्था को काम में लगाया। इतना ही नहीं, स्वयं प्रधानमंत्री जी सभी वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाके उसके साइंटिस्ट का हौसला बढ़ाया और देश ने दुनिया के साथ वैक्सीन का रिसर्च कर लिया और उसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन भी मिल गया। हिंदुस्तान की ताकत है, हमारी क्षमता है। इंडिया में आपने देखा होगा, ये कोरोना क्राइसिस में जिसको हमें अवार्ड देना है, ये ऐसे लोग हैं, ऐसी स्थिति में देश में अपनी ड्यूटी की है। मैंने तो इस वक्त में सारी दुनिया के साथ संपर्क में था, डे टू डे इंफॉर्मेशन हमारे पास आती थी। मैं कोई देश का नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं आते थे, नर्स कहती थी मैं आऊंगा नहीं आऊंगा, उसके पैरामेडिक स्टाफ डरते थे। तो क्या ये डर हमारे देश के ये लोगों को नहीं ये हमारे कोरोना वॉरियर को नहीं लगा होगा? क्या उसकी फैमिली नहीं होती होगी, उसको ऐसा नहीं हुआ होता कि ये मेरा बेटा कोविड में ड्यूटी करने जा रहा है, तो उसकी चिंता उसको होती ही होगी। लेकिन हमारा देश की ताकत तब जब बाहर निकली, अपने डॉक्टर ने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी। 700 से अधिक डॉक्टर की मृत्यु हुई, लेकिन वो ड्यूटी पर खड़े रहे और देश को संभाला और देश के नागरिकों की सेवा की। नहीं केवल डॉक्टर, उस वक्त मैं एक टेलीविजन पर एक नर्सिस का इंटरव्यू देख रहा था। 20 दिन से वो अपने घर नहीं गई थी, 3 महीने का उसका छोटा बच्चा था। किसको अपने बच्चे के प्रति, कौन माँ ऐसी होती है कि उसके बच्चे के प्रति उसका प्रेम नहीं होता? उसके बच्चे के प्रति उसका प्रेम होता है, लेकिन एक और अपनी ड्यूटी थी, दूसरी ओर अपना बच्चा था, बेटा था। कॉल पर कभी उसके घर से व्हाट्सएप के माध्यम से उसका फेस देख लेती थी और ड्यूटी में अड़ी रहती थी। घर पर इसलिए नहीं जाती थी, ड्यूटी करते करते शायद वो इफेक्टेड हो गई हो और बच्चे में इफेक्ट ना हो जाए, इस भाव से वो काम करते थे। और मैं थोड़े दिन पहले G20 हेल्थ मिनिस्टर समिट में गया था। मैं यहां से मेरे ऐसे लोगों की कथा लेके गया था, सेंटिनेंटल ऑफ सॉइल। मेरे धरती पर ऐसे कई कर्मवीर हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में अपनी ड्यूटी की। वो चाहे, उसमें एक कथा थी, एक एम्बुलेंस ड्राइवर, कोई फैमिली में कोविड हो गया, उसकी फैमिली के लोग उसको लेने के लिए, उठा के हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार नहीं थे, और वो उसको हॉस्पिटल में एक परिवार के सदस्य को
उनके घर से उठा के हॉस्पिटल ले जा रहे थे। बीच में उसको सूचना मिली कि आपकी माँ का देहांत हो गया है, कोरोना आपकी माँ को हो गया था, उसका देहांत हुआ है। पहले वो पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और बाद में अपनी माता की विधि करने के लिए, अंतिम क्रिया करने के लिए जाते हैं। अंतिम क्रिया पूरी करके फिर अपनी ड्यूटी में लग जाते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान के नागरिक की ताकत है, अपने सेवा के प्रति समर्पण है। दोस्तों, नहीं केवल इतना, वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है दूर सुदूर के इलाके। हिंदुस्तान में तो ह्यूज डाइवर्सिटी है, 3500 किलोमीटर हिमालयन रेंज है, कई राज्य हिमालयन के गोद में है, कई राज्य में हाईली रेन होती है। और वहां किस तरह से पानी भरा हुआ हो, जम्मू कश्मीर में पहाड़ों में छटते हुए हमारे वैक्सीनेटेड कर्मियों कितने दूर सुदूर जाके अपनी ड्यूटी करते हैं। मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था, बाढ़ थी उड़ीसा में और वैक्सीनेशन के लिए जा रहा था। खबे में वैक्सीनेशन की बैग थी, वैक्सीन की बैग थी। एक व्यक्ति आगे चलते थे, उसका हैंड पकड़ के दूसरा व्यक्ति चल रहा था। मैं उसका पैर देख रहा था, लेकिन उसके मन में अपनी ड्यूटी अदा करने का कमिटमेंट उसकी आंख में मैं देख रहा था। तब जाके हिंदुस्तान इस महामारी से लड़ पाया। किन्होंने नहीं काम किया है? ये देश कोरोना के सामने जो सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी है ना, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, इस स्थिति में हम काम करते 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 अपनी ड्यूटी अदा करते करते ये कोरोना क्राइसिस के सामने लड़े हैं। और मुझे आज गौरव महसूस हो रहा है, इस कार्यक्रम में मैं हूँ। हेल्थ गिरी से ऐसे लोगों को अवार्ड देना है। इस चाहे इंस्टीट्यूट हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे अपनी ओर से जिस तरह से कंट्रीब्यूशन हो सके इस तरह से कोरोना क्राइसिस में अपना कंट्रीब्यूशन किया हो, ऐसे लोगों को सम्मानित करना है। और ऐसे लोगों को सम्मानित करना ये भारत की परंपरा रही है और एक कर्तव्य इंडिया टुडे ग्रुप निभा रहा है। इसलिए मैं इंडिया टुडे ग्रुप और अरुण पुरी जी को अभिनंदन देता हूं, सारा इंडिया टुडे परिवार को अभिनंदन देता हूं, क्योंकि यह अरुण पुरी जी बता रहे थे, हेल्थ स्वच्छता अभियान की बात कर रहे थे। देखो केवल कैसा संयोग है, स्वच्छता की बात जहां स्वच्छता वहां प्रभुता, ये स्लोगन महात्मा गांधी जी ने दिया था। उस वक्त फ्रीडम फाइटिंग जब चल रही थी, आजादी की लड़त चल रही थी, तब आजादी की लड़त के साथ गांधी जी ने चरखे को जोड़ दिया, स्वच्छता को जोड़ दिया। देखो उस वक्त हमारे क्रांतिकारियों को जो बाहर आके अंग्रेज के सामने आवाज उठाते थे, उसको तो जेल में भेजते थे, फांसी के फंदे पे चढ़ाते थे। हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते 7 लाख युवाओं ने अपना प्राण का बलिदान दिया, तब जाके हिंदुस्तान आजादी की ओर आगे बढ़ा। महात्मा गांधी ने सोचा कि कितने हमारा युवाओं का हम बलिदान करेंगे। उसका बलिदान को रोकने के लिए गांधी जी ने दूसरा रास्ता पसंद किया। अंग्रेज के सामने उन्होंने दूसरी तरीके से लड़ाई लड़ना शुरू किया। कौन सा तरीका था? उन्होंने आजादी की लड़ाई चरखे के साथ जोड़ दी, और चरखा चलता था, आजादी की लड़ाई भी ऐसे चलती थी। चरखा चलाना, खादी उत्पादन करना, अर्थोपार्जन भी हो जाता था। गरीब के यहाँ भी चरखा चलता था, अमीर के यहाँ भी चरखा चलता था, झोपड़ी में भी चरखा चलता था, महल में भी चरखा चलता था। एक सभी जगह पे चरखा चलता था। लेकिन ये चरखा के साथ आजादी की लड़त जुड़ गई। चरखा का एक चक्कर लगाता था और आजादी का गीत गाता था, अंग्रेज को पता नहीं चला। और यही चरखा ने देश की आजादी के में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सारा वातावरण तब अंग्रेजों को पता चला कि गरीब झोपड़े में बैठे लोग में भी आजादी की चिंगारी लग गई है। ऐसे महापुरुष महात्मा गांधी, उन्होंने कहा था, स्वच्छता के बिना कभी आप स्वास्थ्य की कल्पना नहीं करते हैं। आप स्वस्थ नागरिक निर्माण करना है, स्वास्थ्य की चिंता करना है, तो स्वास्थ्य और आपका दोनों एक साथ जुड़ा है। स्वच्छता और स्वास्थ्य एक दूसरे के दो पहलू है। स्वच्छता होती है तो स्वास्थ्य की रक्षा होती है।
रोग दूर भागते हैं। जो स्वच्छता नहीं होती तो गंदगी होती, और गंदगी से हेल्थ ठीक नहीं रहती। आज मोदी जी वही बात कर रहा है। दोस्तों, नया भारत का निर्माण करना है हमें। देश की ताकत को पहचानना है, देश की ताकत को सम्मानित करना है, देश की ताकत को उजागर करना है। देश की आज जिस लोगों को अवार्ड मिल रहा है ना दोस्तों, ये भी देश की एक ताकत है, उसको सम्मानित करना है, उसको प्रोत्साहित करना है, ताकि उसमें से प्रेरणा लेके देश के हर नागरिक आगे बढ़े। उसमें से प्रेरणा लेके अपने स्वयं में भी इस सेवा भाव निर्माण हो, नेशन के प्रति कमिटमेंट निर्माण हो, नेशन के प्रति अपना ड्यूटी के प्रति सद्भाव हो, ड्यूटी के प्रति कमिटमेंट हो। इसलिए ऐसे कार्यक्रम बहुत आवश्यक होता है। आज जिसको अवार्ड मिलना है उसको भी मैं अभिनंदन करता हूँ। जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया, इंडिया टुडे परिवार को भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और भविष्य में भी हम ऐसा कार्यक्रम के माध्यम से जन जागरण करते रहे, यही अपेक्षा। धन्यवाद। मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम सम्मान समारोह की शुरुआत कर देना चाहते हैं बिना समय लगाए, और मैं इस क्रम में सबसे पहली जो हमारी कैटेगरी है उसकी घोषणा करना चाहती हूं। ये कैटेगरी है बेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल कॉम्बैटिंग कोविड-19, और इसके विजेता हैं लोक नायक अस्पताल दिल्ली। स्टेज पर आमंत्रित करना चाहती हूं डॉक्टर सुरेश कुमार, मेडिकल डायरेक्टर जो अस्पताल के हैं। अस्पताल की तरफ से जो कोशिशें की जा रही थी वो नीचे से लेकर ऊपर तक हर जगह नजर आ रही थी। 13 डॉक्टरों को एलएनजेपी ने गंवाया था इस दौरान। लगभग 1000 जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो इन्फेक्टेड हुए थे, लेकिन उसके बावजूद लड़ते रहे, ये डटे रहे। दिल्ली में कतारें जरूर लगती थी, लेकिन किसी को मायूस नहीं लौटना होता था। सरकारी अस्पताल के बाद अब प्राइवेट अस्पताल की बारी है। बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल कॉम्बैटिंग कोविड-19, और विजेता है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भुवनेश्वर। सम्मान के लिए मैं चाहती हूं कि स्टेज पर ब्रिगेडियर डॉक्टर अंबिका प्रसाद मोहंती, वीएसएम, मेडिकल सुपरिटेंडेंट किम्स। ये एक बहुत ही एक होमली टच था इनके अप्रोच में। जो मरीज होते थे उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाता था, उनके संवाद के लिए कैमरों का इस्तेमाल किया जाता था ताकि घर वालों से भी डॉक्टरों से सबसे संपर्क कर सकें। एक ऑक्सीजन प्लांट को इन्होंने इंस्टॉल किया था वहां पर ताकि आपूर्ति स्वयं ही हो जाए।